Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty, living name of our Lord and Savior Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम निर्गमन चैप्टर 33 वर्स 12 till 17 हम पढ़ेंगे। Exodus chapter 33 verse 12 till 17 we'll read today and meditate on it. Come, let us bow down our head and surrender to the Lord for receiving His abundant blessing and love. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद यहोवा राफा, यहोवा यारोम, यहोवा शलोम, यहोवा यारी, यहोवा एलोहिम, God the Son, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, Holy Mother of the Lord, we are so thankful to you, Father Lord, for your unconditional mercy and blessing. The word you had given us today, Father Lord, make us able to meditate on it, read it, and receive your grace, your mercy, your will in our life, and make us able to walk according to your will, Father Lord, in this worldly life. As you have given us the power to choose, make us able to choose always right according to your will, which give you happiness and which give you the which please you with our actions. In Jesus' precious name we ask this prayer. Amen. आज का पवित्र कलाम मूसा का निवेदन है। इस वचन की हेडिंग निर्गमन चैप्टर 33 वर्स 12 till 17 हम पढ़ेंगे। I'll read in Hindi and in English as well. मूसा ने प्रभु से कहा, तूने मुझे इन लोगों को आगे ले जाने की आज्ञा दी, पर मुझे यह नहीं बताया कि तू मेरे साथ किस को भेजेगा। तूने मुझसे कहा, मैंने तुमको चुना है और तुम मेरी कृपा पात्र हो। यदि मैं सचमुच तेरा कृपा पात्र हूँ तो मुझे अपना मार्ग दिखला, जिससे मैं तुझे जान सकूं और तेरा कृपा पात्र बना रहूं। यह भी ध्यान रख कि ये लोग तेरे ही प्रजा है। तब उसने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? उसने उत्तर दिया, यदि तू स्वयं हमारे साथ नहीं चलता तो अच्छा हो कि हमें भी यहाँ से आगे जाने की आज्ञा ना दे। हम यह कैसे जान सकें कि मैं और तेरे ये लोग तेरे कृपा पात्र हैं? यदि तू हमारे साथ नहीं चलता तो मैं और तेरे ये लोग पृथ्वी के अन्य सब लोगों से कैसे विशिष्ट समझे जाएंगे। प्रभु ने मूसा से कहा, तुमने अभी जिस बात के लिए प्रार्थना की है वही मैं करूँगा, क्योंकि तुम मेरे कृपा पात्र हो और मैंने तुमको चुना है। ये परमेश्वर का कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। I'll read in English. Chapter 33, Exodus, verse 12 till 17. Musa said to the Lord, it is true that you have told me to lead these people to the land, but you did not tell me whom you would send with us. You have said that you know me well and are pleased with me. Now if you are, tell me your plans, so that I may serve you and continue to please you. Remember also that you have chosen this nation to be your own. The Lord said, I will go with you and will give you victory. Musa replied, if you do not go with us, do not make us leave this place.
How will anyone knows that you are pleased with your people and with me if you do not go with us? Your presence with us will distinguish us from any other people on earth. The Lord said to Musa, I will do just as you have asked because I know you very well and I am pleased with you. This is the word of God. Praise be to God. Amen. आज के पवित्र कलाम में बहुत ही सिंपल और साधारण शब्दों में मूसा ने परमेश्वर यहोवा पिता परमेश्वर से कहा, हे प्रभु, जिस मार्ग पे आप हमें ले जाना चाह रहे हैं, कृपया हमारे साथ किसी को भेजें। यह मूसा पूछ रहा है परमेश्वर से कि आप हमारे साथ किसको भेज रहे हैं। और आगे लिखा है, तूने मुझसे कहा कि मैंने तुमको चुना है और तुम मेरे कृपा पात्र हो। We are your chosen one, the Lord said himself. The Lord has chosen us. यदि मैं सचमुच तेरा कृपा पात्र हूं तो मुझे अपने मार्ग दिखला, जैसे मैं तुझे जान सकूं, जिससे मैं तुझे जान सकूं और तेरा कृपा पात्र बना रहूं। यह भी ध्यान रख कि ये लोग तेरी ही प्रजा हैं। यहाँ पे मूसा ने परमेश्वर से कहा, शो मी द मार्ग, शो मी द वे एंड टेल मी and make us able to feel and make them, जो मूसा के साथ थे, make them able to feel that they are the chosen one। और आगे के अंतिम वर्ष में लिखा है, जो 17 हमने पढ़ी है, कि इन लोगों को इस चीज का एहसास करवाओ यहोवा परमेश्वर कि ये किस तरह अन्य लोगों से अलग है, और वो सब एहसास तभी हो पाएगा जब आप हमारे साथ, या आपकी प्रेजेंस, आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ चलेगा। यहाँ पे परमेश्वर ने 14th वर्ष में कहा, तब उसने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? पूछा। इन इंग्लिश इट इज रिटन, The Lord said, I will go with you and will give you victory। जो आज का ये कलाम है, इसमें जो 14th वर्स है, वो ही सबसे ज़्यादा मेडिटेट करने के लिए है। वो इसलिए है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारे मसीह भाइयों की ज़िंदगी में, या अन्य चूजन वन की ज़िंदगी में कई बार ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि हम लोग इधर उधर ताकना शुरू कर देते हैं, और उस समय rather than asking help from any other source or any other person, we should meditate on the word of God, because परमेश्वर के पवित्र कलाम में परमेश्वर ने बार बार कहा, और बहुत से जो ये चैप्टर्स हैं, इनमें बताया गया, परमेश्वर के पवित्र कलाम बाइबल में बताया गया कि परमेश्वर अपने चुने हुओं से कह रहा है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। As we had read it here, हम ये कैसे जान सकें कि मैं और तेरे ये लोग तेरे कृपा पात्र हैं? यदि तू हमारे साथ नहीं चलता तो मैं और तेरे ये लोग पृथ्वी के अन्य सब लोगों से कैसे विशिष्ट समझे जाएंगे? और आगे लिखा है,
प्रभु ने मूसा से कहा, तुमने अभी जिस बात के लिए प्रार्थना की है वह मैं करूंगा। मूसा की प्रार्थना में विश्वास इतना था कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और कहा, जो प्रार्थना आप मुझसे कर रहे हैं उसको वे परमेश्वर यहोवा परमेश्वर सुनेंगे और आपको बरकते बारिश करेंगे, क्योंकि तुम मेरे कृपा पात्र हो और मैंने तुमको चुना है। In 17th verse it is written, I had chosen you. बहुत सी बार हमारे जिंदगी में समस्याएं आती हैं और हम लोग उस समस्याओं को देख के या उस सिचुएशन में इतने ज़्यादा उस सिचुएशन को अपने आप के ऊपर हावी कर लेते हैं कि हम हमारे परमेश्वर यहोवा के जिंदा परमेश्वर के वायदों को भूल जाते हैं। परमेश्वर के पवित्र कलाम के अनुसार मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि जिस तरह आप अपनी नेगेटिव सिचुएशंस को जो आपकी ज़िंदगी में आती हैं अपने आप के ऊपर आप उसे हावी कर लेते हैं या उस सिचुएशन को उस प्रॉब्लम को अपने से ज़्यादा बड़ा समझते हैं, क्या आपने कभी ये कोशिश की कि आप उस प्रॉब्लम को छोटा समझे और परमेश्वर के कलाम में मेडिटेट करें और परमेश्वर से दुआ प्रार्थना में इतनी शिद्दत से आ जाए कि परमेश्वर जिस तरह मूसा से कहता था, एलिया से कहता था या अन्य चूजन वन से अय्यूब से दाऊद से बातें करता था, वे हमसे भी करें। और जो आपके सपने हैं, जो आपकी सोच है, जो आपके गोल हैं, जो आपने अचीव करने हैं, उन सपनों को, उस सोच को, उन गोल्स को नेगेटिविटी के आगे छोटा मत करें। कोई भी सिचुएशन आए आपकी जिंदगी में, आपका फोकस आपके गोल पे और उससे पहले परमेश्वर के पवित्र कलाम पे बना रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी परमेश्वर ने कहा in 17th verse, in 14th verse, Exodus 33 verse 14 and 17, the Lord said, I will go with you and will give you victory. जब जिंदा परमेश्वर यहोवा ने कह दिया तो उसे कोई भी दुनिया की ताकत बदल नहीं सकती। पूरे यूनिवर्स की ताकत यहोवा परमेश्वर के किए हुए वायदे को नहीं बदल सकती। 17th वर्स में लिखा है, द लॉर्ड सेड टू मूसा, आई विल डू जस्ट एज यू हैव आस्क्ड, बिकॉज आई नो यू वेरी वेल एंड आई एम प्लीज्ड विद यू। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं और मैं तुमसे खुश हूं। सो टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, in 19th verse, पर आप इनके आगे के 18th, 19th एंड लास्ट एंड 34 चैप्टर ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हम रोज़ों के अंतिम दिनों में हैं और कल हमारा आखिरी रोज़ा है जो लोग रख रहे हैं परमेश्वर की यादगार में। तो इसमें भी जब मूसा दूसरी बार सैने पर्वत पर गया, अगले चैप्टर्स में ये लिखा है, जब मूसा ने दूसरी बार रोज़े लिखे, वो कमांडमेंट्स लेके आए, वो सब लिखा है। तो काइंडली मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड एंड डू नॉट लेट any situation
come in your life which separates you, जो आपको आपके गोल से, आपके सपनों से अलग करे। इस प्रकार की सिचुएशंस को अगर आपके जीवन में कभी आती है तो परमेश्वर से प्रार्थना में इतने ज़्यादा मजबूती से आ जाओ कि वो सिचुएशन पलक झपकते सार यहोवा परमेश्वर आपके जीवन से दूर कर दे। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुन जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। धन्यवाद करते मेरे यहोवा परमेश्वर for your unconditional mercy and blessing, for the promises, especially for the Lord, जो आपने हमसे किए हैं कि आप हमारे संग हैं। You had chosen us for the Lord। किसी भी प्रकार की सिचुएशन हमारे जीवन में आती है, अन्य बिलीवर्स के जीवन में आती है, make us able to stay strong in faith, make us able to give thanks and praise to the living Lord, Father Lord, and make us able to go up, not down. And Father Lord, destroy every negativity, and जो भी सेंडर है उस नेगेटिविटी का, जो भी सोर्स है, जो किसी भी विश्वासी के जीवन में या फादर लॉर्ड हमारे जीवन में कोई भी नेगेटिविटी आने की या प्रवेश करने की कोशिश करे, Father Lord, return that negativity with 10,000 folds to the sender, Father Lord, and make us able to give thanks and praise always and forevermore to our living Lord, Yahweh Parmeshwar, in the name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary. I ask this prayer in Jesus' precious name with the presence of Holy Spirit. Amen and amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us every day our every day's bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy kingdom, power, and glory remains now and forevermore. Amen and amen. I destroy every negativity with the power in the name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit and strength of Yahweh Parmeshwar, love of Mother Mary. Amen and amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with every believer, pastor, preacher, and also with me and my family member, my wife, in the name of the God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. In Jesus' precious name, we ask this prayer with the presence of Holy Spirit, who lives and reigns, one God, now and forevermore. Amen and amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. Praise be to God.